So this will be the new interface. And, we are doing exercise 1B. Okay. So see, what are irrational numbers? Once again, I'll just explain you in brief. What are irrational numbers? Irrational numbers are those which are under root any number, like for example 23, root 23, which does not have a perfect value. Okay, it does not have a perfect value. There is no perfect value for root 23, or it can be root 17 or root 2 or root 3. It does not have any perfect value. Okay, so they are irrational. And also pi is an irrational number. Always remember this. Pi is an irrational. So you should know that irrational numbers are always in root sign. It's one or the other type of root sign. Okay. Now the question is, in 16th question they're saying insert two irrational numbers. Insert two irrational numbers. Between 5 and 6. Between 5 and 6. I have two numbers, 5 and 6, and I have to insert irrational number between them. Okay, irrational number. So मैं एक तरह लिखता हूँ 5 and 6. Irrational number ऐसा नंबर जो रूट के अंदर होता है. करेक्ट. Irrational means ऐसा नंबर जो रूट के अंदर है. ठीक है. So इस 5 को मैं रूट के फॉर्म में लिखता हूँ. रूट के फॉर्म में मीन्स हाउ कैन आई राइट 5 इन द फॉर्म ऑफ रूट? I will write root 25 because root 25 is nothing but 5. Okay, and 6 I can write it as root 36. Correct. 5 को मैंने लिख दिया root 25 and 6 को लिख दिया root 36. Correct. Value change नहीं की है. The value remains the same. Okay. मैंने इसे root 25 and root 36 लिखा. Now इसके बीच में मुझे irrational number insert करना है. ठीक है. कितने irrational number insert करने हैं? 2. तो any two numbers between root 25 and root 36 I can write here inside the root sign. मतलब for example root 26 या root 27 या root 28 या root 30 या root 35. All these numbers are my answers. समझ में आ रहा है? ये सारे numbers है. These numbers are my answers. Okay. सी आप कोई भी नंबर
को इरेशनल नंबर ले सकते हो, जैसे कि रूट 27 का कोई परफेक्ट आंसर नहीं है तो इट इज इरेशनल, रूट 28 का कोई परफेक्ट आंसर नहीं है तो इट इज इरेशनल. ओके, सो आपने इरेशनल नंबर्स इंसर्ट कर लिया बिटवीन 5 एंड 6. दिस इज योर आंसर. Okay, so you can write any two numbers from here. You can write any two numbers from here between 25 and 36. You can write any two numbers. Okay. Acha, so there is a doubt coming here that yes, Isha, your doubt is correct. हाँ, someone is saying me कि sir, can we also insert 5.1, 5.2? अब 5.1 and 5.2 are rational numbers. ये तो rational numbers है, तो इनको insert नहीं कर सकते. ठीक है, आपको नंबर रूट के अंदर होना चाहिए, इररेशनल नंबर होना चाहिए. सो इररेशनल नंबर का कैसे मिलेगा? जब आपने रूट दोनों को रूट में कन्वर्ट किया, ठीक है, एंड इनकी बाउंड्रीज मिल गई और उसके बीच में आपने कोई भी नंबर फाइंड किया विच फिट्स बिटवीन, सो दैट इज योर आंसर. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, हाँ, सो मतलब बेसिकली यू कैन राइट एनी नंबर बिटवीन रूट 26 टू रूट 35 के बीच में आप कोई भी नंबर लिख सकते हो. ऑल आर करेक्ट. रूट साइन चाहिए, लेकिन रूट साइन होना चाहिए. ठीक है, विदाउट रूट साइन द नंबर विल बी रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Insert five irrational numbers. Insert five irrational numbers between 2 root 5 and 3 root 3. 2 root 5 and 3 root 3 के बीच में we need 5 irrational numbers. Okay. So सबसे पहले you have to simplify 2 root 5 and 3 root 3. How should I simplify 2 root 5? We are done in last class. 2 root 5, 3 root 3. Okay. 2 root 5 अगर ये 2 root के अंदर जाएगा तो what will it become? If it goes inside the root, it will become करेक्ट, यानी करेक्ट जनरल यस. तो 5 into 4 हो जाएगा, ये रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा. सो योर आंसर विल बी रूट 20. यस राजवीर. अब ये 3 जब रूट के अंदर जाएगा तो इट विल बी 3 into 9. ओके, दैट इज रूट 27. ठीक है, तो आपको बाउंड्रीज मिल गई रूट 20 और रूट 27 के बीच में. यू हैव टू इंसर्ट 5 नंबर्स. ओके, you have to insert 5 numbers. So let's insert the numbers. Now most of you will make a common mistake here. आप जब insert करोगे तो you will start with root 21, root 22, root 23, root 24, root 25, root 26. Now 6 numbers मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, बट इसमें से एक नंबर रॉन्ग है, वो है root 25. You cannot write root 25. Why you cannot write root 25? क्योंकि root 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5. So this is not a irrational number. ये irrational नहीं है, ये तो rational number हो गया root 25 तो. ओके, सो ये तो बाउंड्रीज root 20 एंड root 27 तो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, दे आर नॉट काउंटेड हियर. सो यहाँ पे root 25 आप नहीं लिख सकते बिकॉज root 25 का आंसर आ जाता है, इट बिकम्स अ रैशनल नंबर. ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? root 21, 22, 23, 24 and 26. These are your 5 numbers.
Next sum. Question number 18. Now, question number 18 and question number 19 are very unique in nature. Okay, so just star mark these sums. Here you have to insert rational numbers. Okay, rational numbers between irrational numbers. मतलब दो इरेशनल नंबर्स दिए होंगे आपको, ठीक है, उनके बीच में आपको रैशनल नंबर इंसर्ट करना है. ओके, तो थोड़ा सा ट्रिकी होता है दिस इज. So now how to solve this? The question is, insert, write two rational numbers between root 2 and root 3. Root 2 and root 3 के बीच में दो रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं. ठीक है, रैशनल नंबर्स, रूट वाले नंबर्स नहीं. ठीक है, रैशनल नंबर्स मतलब रूट वाले नंबर्स नहीं होते, नॉर्मल नंबर्स. ओके, डेसिमल नंबर टाइप्स. तो कैसे करते हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक होता है. There is a set trick for this. What is it? Take this 2, ये 2 है ना यहाँ पे, write this 2 as 200 and the next number is 3, so write this 3 as 300. 2 को लिखा 200 and 3 को लिखा 300. Okay, now tell me any two perfect squares between 200 and 300. इनके बीच में कोई परफेक्ट स्क्वायर बताओ. परफेक्ट स्क्वायर. करेक्ट जैनम मान्या. यस यस करेक्ट. Yes, the two perfect square. 226 is not right. 144 भी नहीं आएगा. 200 और 300 के बीच में बोला है. So it is 225 and 256. Okay, you can also write 289. 289 भी आ सकता है. ठीक है, तीन है, आपको कोई भी दो ही चाहिए. You can take any two. Okay, तो क्या करना है यहाँ पे लिखना है two perfect squares between root 2 and root 3 are 225 and 256. You have to write this statement. Two perfect squares between root 2 and root 3 are 225 and 256. Okay. ठीक है, इतना लिखा. नाउ नाउ सी, ये जो 2 था, इस 2 को आपने 200 बना दिया था. यहाँ पे आपने 100 से डिवाइड कर दिया था 2 को. ठीक है, क्यों किया था 2 को 100 से डिवाइड? सो दैट हमें इजीली नंबर्स पता चल जाए 200 और 300 के बीच में. ओके, इसलिए मैंने उसे 100 से डिवाइड किया था, तो 100 से मल्टीप्लाई किया था. तो नाउ यू हैव टू ब्रिंग इट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म. तो आपको क्या करना है, सिंपली आपने यहाँ पे नंबर्स लिख दिया ना, 225 एंड 256. जस्ट पुट अ पॉइंट हियर बिटवीन. सी, just put a point here. Your number is 225. Make it 2.25. And here your number is 256. Okay. So make it 2.56. ठीक है. सी, अगर मैं आपको डायरेक्टली बोलता कि 2 और 3 के बीच में स्क्वायर्स बताओ, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट ना. आप लोग ये जान नहीं पाते कि द नंबर कुड बी 2.25. ठीक है, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. या 2.56 फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, बट 200 और 300 के बीच में फाइंड करना आसान हुआ हमारे लिए. दैट इज व्हाई आई मेड यू मल्टीप्लाई दिस
numbers. Okay, so now you know it is root 2.25 and root 2.26. So 225 का square root क्या होता है 15 and 256 का square root is 16. So your answers are 1.5 and 1.6. These are your answers. So the required numbers are 1.5 and 1.6. Write the final answer like this. Root 2, then उसके बाद 0.5, 1.6 and root 3. I hope this is clear. The required numbers are 1.5 and 1.6. दो steps करने हैं. First step पे 100 से multiply करना है. Second step में squares find करना है. That's it. And then put a decimal point. Done sum. Okay. I hope all of you have understood this. Now why do I add points? Points क्यों add किया था? Because ये जो मैंने यहाँ पे इसको देखो, अगर आप मैंने 2 को 200 बना दिया था, ठीक है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो जो मुझे जो वैल्यू मिली है लेट्स से 256, तो इसको वापस नॉर्मल पे लाने के लिए यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100, दैट इज 256 हो जाएगा. नाउ किसी के दिमाग में कुछ डाउट आना चाहिए यहाँ पे. देयर शुड बी वन डाउट हियर. समवन may ask me that सर ये जो 1.5 है और ये जो 1.6 है, इट इज स्मॉलर देन 2, तो ये 2 और 3 के बीच में कैसे आया? इज दिस डाउट देयर इन समवन्स माइंड? बिकॉज मुझे प्रीवियस बैच में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर ये 1.5 और 1.6 तो 2 से छोटा है, तो ये कैसे बीच में आ गया यहाँ पे? सो डू यू हैव एन आंसर फॉर दिस? किसी के दिमाग में आ रहा है आंसर क्या हो सकता है इसका? ये सर हम सर उसका स्क्वायर लेंगे तो 2.25 और 5.5. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो ये जो नंबर्स है 1.5 और 1.6 ये रैशनल नंबर्स है, ये रूट के अंदर नहीं है, ठीक है. तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि 1.5 2 से छोटा है, तो 1.5 यस 2 से छोटा है, ओके, लेकिन यस बिकॉज ये जो रूट 2 है ना, रूट 2, ये रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? इफ यू यूज अ कैलकुलेटर, इफ यू टेक अ कैलकुलेटर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 2, आपको वैल्यू मिलेगी 1.414. ये होती है रूट 2 की वैल्यू. एंड इफ यू टेक अ कैलकुलेटर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 3, यू विल गेट 1.732. तो ये इनकी एक्चुअल वैल्यूज होती है. तो अभी आप देखोगे हमारा जो आंसर है वो क्या इसके बीच में है? यस, प्रॉपरली बीच में है. 1.4 और 1.7 के बीच में है हमारा आंसर. इट इज करेक्ट. ओके, सो आपको ऐसा देख के लगेगा कि रूट 2 है तो रूट 2, बट रूट 2 की जो वैल्यू होती है इट इज 1.4. 2 से छोटी वैल्यू होती है रूट 2 की. ओके, so do not get confused. Just follow these steps which I have written here. First multiply by 100, then take squares and put decimal. That's it. कोई भी कैसा भी sum दे दे, you will get the answer. Okay, I hope all of you have copied this. This should be your final step of the answer. Next, question number 90. Write 3 rational numbers between root 3 and root 5. Root 3 and root 5. तो मतलब क्या करना है? 300 and 500. So tell me a squares between 300 and 500. There are many squares. So yes, 400 हो सकता है, 361 हो सकता है, 441 हो सकता है, 324 भी हो सकता है. एनी नंबर. हमें कितने चाहिए? 3 चाहिए. तो आई हैव टेकन दीज 3 नंबर्स. ओके, तो आई विल राइट हियर द स्टेटमेंट. 3 perfect squares between root 3
and root 5 are root 361 and root 361, root 400 and root 441. Okay, and then we will put squares ले लिया, अब decimal point put कर दो यहाँ पे. Okay, therefore the required numbers are root 3 and root 5 के बीच में. 361 किसका स्क्वायर है? 361 is a square of 19, 400 is a square of 20 and 441 is a square of 21. ठीक है, एंड सबके बीच में एक एक डेसिमल पॉइंट डाल देंगे. सो आंसर विल बी 1.9, 2.0 एंड 2.1. ठीक है, किसी ने 1.8 भी लिखा होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. किसी ने 2.2 भी लिखा होगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, यू नीड टू राइट 3 वैल्यूज, एनी 3 वैल्यूज विल डू. ओके, किसी ने यहाँ पे 324 लिखा होगा तो वो भी चलेगा. किसी ने यहाँ पे 484 लिया होगा तो वो भी चलेगा, बिकॉज दीज टू आर ऑल्सो परफेक्ट स्क्वायर्स. Yes, guess will do. Your answer is correct. Okay, so these were a little different questions. I hope you are able to solve it. Next, question number 20 is a simple question. You have to just simplify the values given. Okay, you have to just simplify it. So what is the first question here? Fifth root of 16 into fifth root of 2. ठीक है, simplify करना है इसे. Now this is also fifth root and this is also fifth root. Both are fifth root. ठीक है, तो इसको मैं साथ में लिख दूंगा. Fifth root of 16 into 2. 16 into 2. That is fifth root of 32. ठीक है. Now if you see what is 32, if you factorize it, 32 is 16, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are. ठीक है. So fifth root of 32 is 2 into 2 into 2 into 2. ठीक है. Fifth root का मतलब क्या होता है? There should be a pair of 5 numbers here. That is fifth root, pair of 5 numbers. तो यहाँ पे 5 2s है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे? 2. Are you getting my point? फिफ्थ रूट क्या बन जाएगा? 2. फिफ्थ रूट है इसलिए 5 2 है यहाँ पे, तो ये 5 2 बाहर आ जाएंगे, एक 2 बाहर आ जाएगा, 5 का पेयर बन गया, बिकॉज इट इज फिफ्थ रूट. एंड योर आंसर इज 2. You can understand it like this also. 32 क्या होता है? 32 is 2 raised to 5. See, this prime factorization which you do here, prime factorization, keep it as a part of your solution only. Don't do it in rough work. Next question is this. 243 and root 3. Now again, this is fourth root. In the numerator and denominator, you have fourth root. So इसको common करो. Fourth root of 243 upon 3.
So 3 ones are 3 eights are and ones are. You will get fourth root of 81. What is 81? If you factorize it with 3, factorize it with 3, you will get 3 into 3 into 3 into 3. तो ये पेयर हो गया 4 3s का. ये फोर्थ रूट है मतलब 4 का पेयर होना चाहिए. सो दिस 3 विल कम आउट, 3 बार हो जाएगा. ठीक है, तो योर आंसर विल बी 3. सॉल्व हो गया ना ये. दिस इज लाइक दिस, फोर्थ रूट ऑफ 3 raised to 4. This gets cancelled. Answer is 3. You cannot take 9. 9 नहीं ले सकते. क्यों? बिकॉज ये फोर्थ रूट है. अगर आपने 9 स्क्वायर लिखा तो ये 4 और ये स्क्वायर का कुछ नहीं हो सकता. यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे भी आपको कोई ऐसा नंबर लेना है विच इज रेज टू 4. Okay, let's do the next sum. Sub question 3. 3 plus root 2, 4 plus root 7. See, they are giving you these questions because they want to just check your basic multiplication here. Because in the next exercise, we will have a lot of multiplications like this. So, जब दो brackets ऐसे होते हैं, how do you multiply the two brackets? How do we open the brackets? So, this first term 3 will get multiplied with the full bracket. So, 3 into 4 plus root 7. And this root 2 will multiply with the full bracket. So, plus root 2 into 4 plus root 7. Okay. Now, before opening the brackets, I want to explain you something. Some basic multiplication which involve roots. Okay. By taking the example of 7 only. See, tell me what is the value of root 7 square? What is root 7 square? 49 is not correct. 49 is wrong. Correct, Aram. Correct, Nivan. 7. Correct. So देखो, सबसे पहले तो root 7 square is, you can write it like this. It is root 49. ठीक है, रूट के अंदर होगा. एंड रूट 49 इज नथिंग बट 7. ठीक है. सो रूट 7 को आप डायरेक्टली भी समझ सकते हो. क्या हो जाता है वो? 7 हो जाता है. ओके. नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 7 इनटू रूट 7. What is the value of root 7 into root 7? It is same only. These both are same. These both are same. Root 7 into root 7 is also root 49. That is 7. समझ रहे हो? तो अगर आपको ये समझना चाहिए, रूट 7 इंटू रूट 7 एंड रूट 7 स्क्वायर, दिस बोथ मीन द सेम. ठीक है. तो जब आप स्क्वायर में, तो आप हमेशा याद रखो, इफ यू आर टेकिंग स्क्वायर ऑफ अ रूट साइन, अगर एक रूट का आप स्क्वायर ले रहे हो तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है. तो क्या बचता है? सिर्फ नंबर बचता है. ठीक है. समझो किसी भी होगा, समझो रूट 3 है, यू हैव टेकन द स्क्वायर ऑफ रूट 3, सो दिस 2 एंड रूट विल गेट कैंसिल्ड, यू विल गेट 3. ओके. और जब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, रूट 7 इंटू रूट 7,
तो ये भी मतलब √7 का स्क्वायर ही हो रहा है, इसका मतलब है जब सेम नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं मतलब √7 का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है मतलब वो 7 बन जाएगा। करेक्ट, रूट स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये रूट की साइन चली जाती है स्क्वायर के साथ। ओके, बट अगर सेम नंबर्स नहीं है, सेम नंबर्स नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल इट इज √2 into √7, so now what will happen, tell me। correct, few are saying correct, few are making mistakes here। See, √7 into √2 into √7, here the numbers are different, तो ये 2 7 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एंड यू विल गेट √14, योर आंसर विल बी √14, ठीक है। ये रूट ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे रूट कैंसिल नहीं होगा। रूट कैंसिल कब होता है, रूट कब चले जाता है, जब स्क्वायर हो जाता है, जब दोनों टर्म्स सेम होते हैं, व्हेन बोथ टर्म्स आर सेम, तभी रूट की साइन चली जाती है, ठीक है, और आंसर आ जाता है। बट अगर सेम नहीं है, √5 into √7, तो दैट बिकम्स √14, या समझो √5 into √3, तो ये बन जाएगा √15। ओके, सो रिमेंबर दिस मल्टीप्लीकेशन, रिमेंबर दिस। ओके, एडिशन में अगर एडिशन हुआ रूट के नंबर्स का, जैसे फॉर एग्जांपल √5 प्लस √3, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस, ठीक है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट लिसन। सो √5 प्लस √3, √5 प्लस √3 को हम ऐड नहीं कर सकते, वी कैनॉट ऐड देम, एडिशन होता ही नहीं है। डिफरेंट नंबर ऑफ, अगर डिफरेंट नंबर का रूट है तो यू कैनॉट ऐड देम, ओके, यू कैनॉट ऐड देम। अगर सेम नंबर का रूट्स है, फॉर एग्जांपल √5 प्लस √5, √5 प्लस √5, तो दिस बिकम्स 2 √5, दो √5 है, एक और एक, 2 √5, it becomes 2 √5, it is same like x plus x becomes 2x, वैसा। ओके, सो ये बात याद रखना कि अगर डिफरेंट रूट्स है तो उनको ऐड तो कर ही नहीं सकते, ऐड नहीं कर सकते उनको, ठीक है, बट अगर सेम रूट्स है तो उनको ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड मल्टीप्लीकेशन का भी रूल बता दिया मैंने कि इफ देयर आर सेम नंबर्स इनसाइड द रूट्स, जैसे कि √3 into √3, दिस इज √3 स्क्वायर, तो इट बिकम्स 3। ओके, और अगर डिफरेंट नहीं है तो दे विल मल्टीप्लाई, रूट साइन विल रिमेन एज इट इज, root sign will remain as it is। Okay, so, okay, once we have understood these basic arithmetic operations, so now we can come to the sum। See here, so this 3 will multiply with 4, 3 4s are 12 plus 3 into √7, see 3 into √7, ये नंबर रूट में है और ये रूट में नहीं है, ठीक है, तो यू कैनॉट मल्टीप्लाई देम, कुछ नहीं होगा इनका, इनका सिर्फ ऐसे ही रहेगा 3 √7, बिकॉज ये नंबर रूट में है और ये रूट में नहीं है, तो इनको आप ऐसा नहीं हो सकता कि 3 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल बी रॉन्ग। ओके, तो 3 into √7 विल गिव यू 3 √7। ओके, √2 into 4, इट इज अगेन सेम, √2 into 4, ये क्या बन जाएगा, 4 √2, बिकॉज इसमें रूट है और इसमें रूट नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं है, तो बस साइड बाय साइड लिख दो, 4 √2 प्लस √2 into √7, what is √2 into √7, √2 into √7 is √14, डिफरेंट नंबर्स है। ओके, so
दिस इज माय फाइनल आंसर. आगे मैं किसी को ऐड नहीं कर सकता. अच्छा, देयर इज अ डाउट दैट कैन आई राइट दिस एज 2√4. नहीं, ऐसे नहीं लिखते. पहले कभी भी नंबर लिखते हैं और फिर रूट लिखते हैं, तो इट शुड बी 4√2. फर्दर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं है, किसी भी चीज को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि सब अलग अलग है. ये 12 है, ये √7 है, ये √2 है और ये √14 है. सब अलग अलग है. यू कैन नॉट ऐड देम. दिस विल बी योर फाइनल आंसर, दिस स्टेप. And fourth one is √3 minus √2 the whole square. So which formula should I use here? A minus B, A plus B, no push. It will be A minus B the whole square. That is A square plus B square minus 2AB. So A square plus B square minus 2AB, like this. Correct, Jenna. So √3 square is 3, √2 square is 2, minus 2√6. 3 plus 2 is 5 minus 2√6. So does anyone have any doubt here? You can, I will allow you to unmute yourself. You can unmute yourself and ask the doubt if any. Anyone have any doubt? Okay, then we can start with the next exercise. सर अपने √6 कैसे ऐसे मतलब 5 minus 2 √6 आ गया अभी करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? √6 कैसे आया? See this. √3 into √2 हुआ है. यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 into √3 into √2 हुआ है. Okay. So √3 into √2. √3 into √2 is √6. Zero. Okay sir, thank you. What happened, Manya, for third sum? What do you want to ask here? Manya, please unmute yourself and ask the doubt. So for the third sum, hello. Yes, for the third sum, what? So can't we take the root like inside the root, the number inside the root, and then simplify? Like if there is 3√7, you want to take the 3 inside. No, like for the second one, 4√2. 4√2. So you want to take the 4 inside, it will become 16, like that. Yeah. See, that is not simplification. Means this is a simplified number. If you have a number like this, 7 into 9, okay, 7 into 9. So simplification means to bringing the number outside the root. So root के बाहर होता है ना, मतलब number simplified है. ठीक है? Root के अंदर मतलब it is not simplified.
तो ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड नंबर्स है, √3 √7 एंड 3 √4 रूट. So if it is not, then you have to do it. Let's start with exercise 1C. Now, in exercise 1C, the first question is, state which of the following are surds. Now, first of all, what are surds? First of all, what are surds? See, so surd is a complex, it is a complex number. Okay, it is a complex number, surd, which does not have a perfect answer. Which does not have a perfect answer means सर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के 3 पॉइंट्स है. ठीक है, 3 पॉइंट्स. आई विल शो यू दोस 3 पॉइंट्स. अगर ये 3 कंडीशंस 3 पॉइंट्स सेटिस्फाई हो जाते हैं देन यू विल से दैट इट इज अ सर्ड. ठीक है, जैसे द फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर विल ऑलवेज बी इनसाइड द रूट. रूट के अंदर होगा. ठीक है, रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. फर्स्ट कंडीशन क्या है कि रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए. ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि वो नंबर रैशनल होना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड रैशनल? अभी तो अच्छे से समझ में आ गया रैशनल क्या होता है. 2 4 एनी नंबर इज रैशनल नंबर. ओके, सो पॉजिटिव रैशनल. ठीक है, रैशनल भी होना चाहिए. एंड this is the second condition. First condition is positive. The second condition that it should be rational. Okay. सर्ड का मीनिंग मैंने बताया ना. सर्ड एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. ठीक है, एक स्पेशल नंबर होता है जिसको नाम दिया है सर्ड्स. ओके, सो 2 कंडीशंस मैंने आपको बताए सर्ड्स के. 2 कंडीशंस बताए हैं कि पॉजिटिव होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए. एंड थर्ड कंडीशन इज दैट it should not have a perfect answer.
इट शुड नॉट हैव अ परफेक्ट आंसर, मतलब ये सॉल्व नहीं होना चाहिए। ओके, बिकॉज सर्ट का मतलब ही है कि कॉम्प्लिकेटेड नंबर है, ठीक है, तो वो नंबर सॉल्व नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए एंड रूट के अंदर एक रैशनल नंबर होना चाहिए। ओके, सो ये 3 कंडीशंस होनी चाहिए, पॉजिटिव, रैशनल एंड नॉट हैव अ परफेक्ट आंसर। ओके, सो let's see the first question. Root 180. रूट 180। अब ये तीनों कंडीशन इसमें अप्लाई करके देखते हैं। ओके, सो रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर है, 180 इज अ पॉजिटिव नंबर। ओके, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। 180 रैशनल नंबर है क्या एक? 180, यस, 180 इज अ रैशनल नंबर, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। कैन यू सॉल्व दिस? कैन यू गेट अ परफेक्ट आंसर ऑफ दिस रूट 180? मतलब रूट 180 का कोई स्क्वायर रूट होता है क्या? किसी का स्क्वायर है क्या रूट 180? No, it is not a square of any number. You cannot solve it. Okay, so it does not have a perfect answer. So third condition भी satisfy हुई, not have a perfect answer. Okay, see you can simplify this. ये जो रूट 180 है, ठीक है, आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे आप रूट 180 को लिख सकते हो 36 इंटू 5, ठीक है, फिर 36 बाहर आ जाएगा, इट विल बिकम 6 रूट 5। यू हैव सिंप्लीफाइड, बट फिर भी ये इररेशनली है ना अभी तक, ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने से कोई फायदा नहीं हुआ, इट इज स्टिल इररेशनल। तो विदाउट सिंप्लीफिकेशन ओनली यू जस्ट हैव टू नो दैट ये 180 किसी का स्क्वायर तो नहीं है। ओके, सो दिस डज नॉट हैव अ परफेक्ट आंसर। सो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, दैट 180 इज पॉजिटिव, 180 is rational, and 180 does not have a perfect answer. So therefore, it is a surd. Okay, and reason you can write 180 is a positive rational number. Okay, let's do the next one. Fourth root of 27. फोर्थ रूट ऑफ 27, ठीक है। अब 27 क्या होता है, इसको प्राइम फैक्टराइज कर लेता हूँ। 27 इज 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ओके, सो ये सी फर्स्ट वाला आंसर, जिसको अगर नहीं समझ में आया श्रेय सी, आपको सिर्फ कंडीशंस चेक करनी है कि जो रूट के अंदर नंबर है, इनसाइड द रूट द नंबर इज 180, 180 पॉजिटिव है, 180 रैशनल है, एंड रूट 180 कैनॉट बी सॉल्व। कैनॉट बी सॉल्व मतलब फॉर एग्जांपल अगर समझो रूट 144 होता, ओके, रूट 144 होता, तो रूट 144 इज पॉजिटिव, रूट 144 144 एक रैशनल भी है और 144 पॉजिटिव भी है। लेकिन कैन यू सॉल्व रूट 144? विल यू गेट आंसर ऑफ रूट 144? किसी का स्क्वायर है 144?
yes, it is the square of 12. इसका आंसर आ गया 12. तो अगर इसका आंसर आ गया, ये सॉल्व हो गया, तो इट इज नॉट असर्ड. ठीक है, बिकॉज सर्ड का कंडीशन क्या है कि नॉट हैव अ परफेक्ट आंसर, इट शुड नॉट हैव अ परफेक्ट आंसर. ठीक है, तो तीनों कंडीशंस वैसे सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो यू कैन से दैट इट इज अ सर्ड. ओके, नाउ फोर्थ रूट ऑफ 27. फोर्थ रूट ऑफ 27 में दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज अ सर्ड. Now fourth root of 27. Here also, see 27 is rational, 27 is positive. ठीक है, पॉजिटिव भी है, रैशनल भी है. एंड कैन आई सॉल्व दिस? फोर्थ रूट है और यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है, 3 into 3 into 3. तो क्या यहाँ से 3 बाहर आ सकता है क्या? टेल मी, कैन 3 कम आउटसाइड हियर? कैन आई सॉल्व दिस? I cannot solve this because यहाँ पे फोर्थ रूट है. There is fourth root here. फोर्थ रूट का मतलब 4 नंबर्स का पेयर होना चाहिए. ओके, 4 नंबर्स का पेयर होना चाहिए. यहाँ पे 3 ही नंबर्स का पेयर है, तो I cannot solve this root 27. Okay, so third condition भी satisfied हो that it is not a perfect answer. So this is also a surd. Yeah, it is a surd. Chairman, you are asking me that how 27 is positive. पॉजिटिव मतलब अगर नेगेटिव होता तो वो लोग ऐसे लिखते -27, ऐसे लिखते, मतलब ये नेगेटिव है. अगर नेगेटिव होता तो यू विल स्ट्रेट अवे राइट नॉट अ सर्ड. सीधा लिखना है नॉट अ सर्ड, बट ये तो पॉजिटिव है, तो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड. ओके, चलो, now you have understood properly, so we can do it quickly, all the types of how which one is surd and which one is not a surd. So fifth root of 128. Fifth root of 128. Okay, the third one. So 128 जो है वो पॉजिटिव है और रैशनल भी है. ठीक है, फर्स्ट सेकंड कंडीशन. अब ये परफेक्ट आंसर है या नहीं चेक करना पड़ेगा. सो लेट्स फैक्टराइज 128. So 128 is 64, 32. Correct, Hiyansh, Nivan, correct. 16, 28, 24, 22, 21. जो कितने 2 आ रहे हैं? 7 2 आ रहे हैं मुझे यहाँ पे अंदर. 7 times 2 आ रहा है, मतलब यू कैन से इट इज 2 raised to 7 आ रहा है मुझे. यहाँ पे तो फिफ्थ रूट बोला है और मुझे आ रहा है 7. तो इट कैनॉट बी सॉल्व, कैनॉट बी सॉल्व, सो इट इज अ सर्ड. थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड. Okay, fourth one is cube root of 64. Cube root of 64. Cube root of 64. 64 positive है, 64 rational है, but cube root of 64 can be written as 4 into 4 into 4. 4 का क्यूब होता है 64. क्या होता है? 4 का क्यूब. तो ये सॉल्व हो जाएगा, 4 विल कम आउटसाइड, तो इसका आंसर आ जाएगा 4. आंसर आ गया इसका, परफेक्ट आंसर आ गया, तो इट इज नॉट अ सर्ड. अंडरस्टूड? बिकॉज सर्ड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, आंसर नहीं आना चाहिए. कंडीशन क्या है? थर्ड, नॉट हैव अ परफेक्ट आंसर, सो इट इज नॉट अ सर्ड. नेक्स्ट कंडीशंस क्या क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ.
it should be positive, it should be rational, and it should be not a perfect number. Okay. Fifth one, sorry. Fifth one is cube root of 25 dot, they have written a dot here. Dot matlab multiplication. Okay. Cube root of 40. Cube root of 25 and cube root of 40. So cube root, दोनों cube root है, तो we can write it together. Cube root of 25 into 40. Correct, Nima? 25 into 40. So cube root of 25 into 40 is 1000. Okay, and 1000 means 10 into 10 into 10. So this will get solved and you will get the answer as 10. Answer aa gaya means it is a perfect number. So it is not a surd. Okay. Sixth one. What will be the answer for the sixth one? Yes. Who will answer? Yes. Kush, Isha, correct. Very. Not a surd. Directly not a surd. क्यों not a surd है? Because negative number है यहाँ पे. Negative number आ गया. First condition ही गलत हो गई. So it is not a surd. सीधा. Seventh one is root pi. ठीक है. Now पाई, अगर आपको पाई दिख जाए ना क्वेश्चन में, पाई अगर क्वेश्चन में आ गया ना, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, सीधा लिखना है नॉट अ सर्ड. पाई आ गया मतलब नॉट अ सर्ड, बिकॉज पाई इज अ इरैशनल नंबर. ओके, पाई इज अ इरैशनल नंबर. नेक्स्ट वन इज 3 plus root 2. स्क्वायर रूट ऑफ 3 plus root 2. अब सी, रूट के अंदर ये जो नंबर है, ये नंबर पॉजिटिव है. ओके, ये नंबर पॉजिटिव है. क्या ये नंबर रैशनल है? इज दिस नंबर रैशनल? देखो इसके अंदर रूट 2 आ गया है. ये रूट 2, ये रूट 2 एक इरैशनल नंबर है. ठीक है, दिस रूट 2 इज इरैशनल, और इरैशनल नहीं चलेगा. रूट 2 इज इरैशनल, देयरफॉर इट इज नॉट अ सर्ड. इरैशनल नंबर नहीं चलता. Okay, so we have completed question number 1, and one more thing I would like to tell, that these questions which are based on surds, they are never asked in the exam. कभी पूछते ही नहीं. Important questions कौन से हैं जो ज्यादा एग्जाम में पूछते हैं? They start from question number 3. Question number 2 भी एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बट 3 से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, they are important from in terms of exam. ये सर्च सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया हुआ है. ओके, so let's start with question number 2. Lowest rationalizing factor. Lowest rationalizing factor. Find the lowest rationalizing factor. सबसे पहले rationalizing का मतलब क्या हुआ? Rationalizing का मतलब है that something which is irrational
समथिंग विच इज इरैशनल यू हैव टू मेक इट रैशनल. आप एक इरैशनल चीज को रैशनल बना रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज रैशनलाइजिंग. ओके, सो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज 5√2. ओके, सिंगल नंबर, यहाँ पे ये क्या है, √2. √2 इज इरैशनल, करेक्ट. ये जो नंबर है 5√2, ठीक है, इसमें ये √2 जो पार्ट है दिस इज इरैशनल. अभी इस √2 को मुझे रैशनल बनाना है. ओके, तो रैशनल बनाने का क्या रूल है? रूल ये है कि अगर सिंगल नंबर है इरैशनल तो मल्टीप्लाई इट विद द सेम नंबर. मल्टीप्लाई इट विद द सेम नंबर, सो जिससे वो रैशनल बन जाता है. कैसे बन जाएगा रैशनल? व्हाट इज √2 इंटू √2? √2 इंटू √2 इज 2. ओके, सो 5 इंटू 2 क्या बन गया? 10. तो ये रैशनल बन गया, सॉल्व हो गया. 10 इज ए रैशनल नंबर, करेक्ट. मतलब मैंने ये 5√2 था जो इरैशनल नंबर, उसको मैंने रैशनल बना दिया और 10 बना दिया. ठीक है, कैसे बनाया, किससे मल्टीप्लाई किया? मैंने मल्टीप्लाई किया √2 से. सो दिस √2 इज माय आंसर. ओके, ये सी दिस क्वेश्चन इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन नंबर 2 कि कैसे रैशनल बनाते हैं. ओके, सो उन्होंने पूछा है फाइंड द लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर. सो आपने किससे मल्टीप्लाई किया? √2. सो योर आंसर हियर इज √2. ओके, this is the next question is √24. First you have to simplify the numbers. Simplification सबसे ज्यादा important है, ठीक है. You have to first simplify the number. So √24 को मैं simplify कैसे कर सकता हूँ? √24 is nothing but 4 into 6. अगर आपने प्राइम फैक्टराइज किया √24 को तो you will get 12, 6, 3, 1 वैसे. So what can happen here? ये 4 into 6 है, या you can say it is like this 2 into 2 into 2 into 3. So ये 2 2 का पेयर बन रहा है. ओके, आपको इस तरह से स्प्लिट करना है. सी, you don't split it like this. The best way is to split by prime factorization like this. So 2 into 2 into 2 into 3. अब ये 2 2 का पेयर बन गया यहाँ पे, तो ये 2 बाहर आ जाएगा. So what will it become? 2 रूट, अंदर क्या बचा? 2 and 3. 2 into 3 is 6. So आपका √24 क्या बन गया? √24 बन गया 2√6. अब इसको मैं कैसे रैशनलाइज करूँ 2√6 को? हाउ डू आई रैशनलाइज 2√6? I will multiply it with the same number √6. So ये बन जाएगा √6 into √6 is 6. So your answer will be 12. मतलब आंसर आया 12. तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया? √6 से. तो आपका फैक्टर क्या है? द लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर इज √6. ठीक है, तो सिंगल नंबर्स के लिए आप समझ गए हो. जैसे अगर आपको पूछ लिया 2√3 या 7√2, तो 2√3 पूछा तो आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे. 7√2 पूछा तो आप √7 से √2 से मल्टीप्लाई करोगे. सिंगल नंबर के लिए यू मल्टीप्लाई इट विद द सेम नंबर. दैट इज द रूल फॉर सिंगल नंबर्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वेयर देयर आर 2 नंबर्स. अगर 2 नंबर्स है तो क्या करेंगे? I hope you have copied this. Done? Should I do the next sum? Now understand. √5 minus 3. Now there are 2 terms here. एकदम सिंपल लॉजिक है. जब 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है, और आपको उसको रैशनल बनाना है, तो यू मल्टीप्लाई दिस एंटायर टर्म बाय द सेम नंबर्स बट विद द ऑपोजिट साइन. यहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन. इससे वो रैशनल बन जाता है.
कैसे रैशनल बनता है? सबसे पहले तो ये रूल कब यूज करना है? ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कब करना है? ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई जब दो टर्म्स है, ठीक है, तो जो भी उनके बीच में, अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो यू विल मल्टीप्लाई इट विथ माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यू मल्टीप्लाई इट विथ प्लस। ओके, अब इसका क्या होगा? विच फॉर्मूला विल बी यूज्ड हियर? दिस इज √5 minus 3 √5 plus 3, √5 minus 3 √5 plus 3. So which formula will be applied here? So a plus b, a minus b is equal to a square plus b square. Yes, Rajvi. So a plus b, a minus b is equal to a square plus b square. A square minus b square. You are not audible. Sir, a minus b, a plus b equal a square minus b square. Correct. So here it will be, you can see it is in the form of a minus b, a plus b. तो उसका क्या बन जाता है? a minus b, a plus b, it becomes a square minus b square. So this will become √5 square minus 3 square. तो √5 का स्क्वायर क्या होता है? 5. मैंने बताया था ना, √5 का स्क्वायर, रूट एंड स्क्वायर गेट्स कैंसल, सो 5 and 3 square is 9. So your answer is -4. रैशनल है, -4 रैशनल बन गया, ठीक है। तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया था? मल्टीप्लाई किससे किया था? √5 plus 3. So your answer is √5 plus 3. ओके, समझ रहा है? जब दो टर्म्स होते हैं तो यू स्ट्रेट अवे मल्टीप्लाई इट विद द ऑपोजिट साइन। ओके, सो जैसे 7 minus √7 है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 plus √7 से। This will be your answer, 7 plus √7. Okay. Because the question they are asking you that what is the factor, मतलब आप किससे मल्टीप्लाई करके आपको आंसर रैशनल आता है, तो किससे मल्टीप्लाई करके आया? तो आपको √5 plus √3 से मल्टीप्लाई करके आया, इसलिए आपने उसको एज आंसर लिखा। Okay, so here also it will be same, 7 square minus √7 square. So this is 49 minus 7, that is 40. Okay, so your answer is 7 plus √7. Next, fifth one, √18 minus √50. Okay, always remember the first step is to simplify. अगर simplification possible है तो you have to do it, because 18 is what? 18 is 2 into 3 into 3, and 50 is what? 50 is 2 into 5 into 5. अब करके भी देख सकते हो 18 के साथ और 50 के साथ। Like this. यहाँ पे क्या होगा? 3 का पेयर है तो 3 will come out, 5 का पेयर है so 5 will come out. Okay, so this will become 3√2 minus this will become 5√2. 3√2 and 5√2. Okay, so write it like this, 3 minus 5 bracket √2. ये दोनों सेम है ना, √2 तो सीधा 3 minus 5, 3 minus 5 क्या होता है? तो दिस इज -2√2. सिंप्लीफाई किया मैंने उसे, सिंप्लीफाई, तो मुझे आया -2√2. अब मैं इस -2√2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं टू मेक इट रैशनल? With whom should I multiply this -2√2? I will multiply it with √2.
बरोबर, ये -2 का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी -2 इज रैशनल ओनली इवन इफ इट इज नेगेटिव, नेगेटिव नंबर भी रैशनली होता है, ठीक है। इस -2 की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो ये इररेशनल वाला पार्ट होता है ना, वो इररेशनल वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। तो मैंने √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माय आंसर विल बी √2। only you have to multiply it with root. Sixth question is also straightforward. √5 minus √2 है, ठीक है। √5 minus √2, दो टर्म्स है यहाँ पे, there are two terms. You cannot add or subtract them, they are different from each other. Add subtract नहीं कर सकते, तो इसमें क्या करेंगे, सीधा ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई, √5 प्लस √2, इसे मल्टीप्लाई किया, ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया, √5 प्लस √2. So this will be √5 square minus √2 square, that is 5 minus 3, 2. Rational बन गया. So your answer is this. Okay. So what is the takeaway from these type of sums? That single number होता है तो उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, एंड अगर दो नंबर्स होते हैं समझो ऐसे, तो उसे ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करो. बस ये दो चीज हमने सीखी है ये वाले क्वेश्चन में, रैशनलाइज करने के लिए, ठीक है. Seventh one is also same. Seventh one. How will you do the seventh one? दर्श 5 minus 3 कैसे आया? अच्छा sorry, this is 5 minus 2, sorry, and the answer is 3. √2 है ना, √2 का 2 बन जाएगा, and √5 का 5, so 5 minus 2 is 3. Seventh one is also straightforward. 13, √13 plus 3. So इसका opposite क्या होगा? √13 minus 3. Okay. So a plus b, a minus b. That is a square minus b square. Then eighth question. Eighth question is 15 minus 3 root 2. Now purposely they have given this question. कि आप वो mistake करो. Tell me what will be the answer for this. So you are thinking that the answer should be 15 plus 3 root 2, correct? Okay, but there is a small mistake. The first step, I have always told you, the first step is to simplify. अगर simplification कुछ possible है, तो simplification करना पड़ता है, ठीक है? Now what is the simplification possible here? यहाँ पे क्या simplification possible है? यहाँ पे 15 है और यहाँ पे 3 है. So I can take 3 common here. I can take 3 common. तो 15 में से क्या बचेगा? 5 minus √2. 3 कॉमन लेंगे, ठीक है, बिकॉज वो रैशनल है, 3 कॉमन आ गया. नाउ व्हाट इज द इरेशनल पार्ट? दिस 5 minus √2. तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 plus √2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. तो योर आंसर विल बी 5 plus √2, ठीक है. पहले सिंप्लीफाई किया, कॉमन ले लिया 3 को, फिर ये वाला पार्ट बचा तो इसको इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया, ओके.
see, so there are doubts here in the 8th one. Why is 3 common? See, ये जो 15 minus 3 root 2 है, ठीक है, आपको इसको रैशनलाइज करना है, ठीक है, आपको इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के पहले सी क्वेश्चन, व्हाट डज द क्वेश्चन सेज? क्वेश्चन सेज लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। क्वेश्चन सेज लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। ये लोएस्ट वर्ड के लिए आपको पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। कि सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि क्या कुछ एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन, कुछ कॉमन लेना, एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन इज पॉसिबल? क्या वो पॉसिबल है? तो वो करना होगा पहले। तो यहाँ पे पॉसिबल था कि यहाँ पे 15 था एंड यहाँ पे 3 था। सी, इसके प्रीवियस में कोई भी सम में पॉसिबल नहीं था। जैसे कि समझो √3 + 3 था ये वाला सम, 8th वाला, तो यहाँ पे √13 + 3, सॉरी, यहाँ पे कुछ भी कॉमन लेना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। इसके पहले √5 + √2 था, यहाँ पे भी कोई कॉमन पॉसिबल नहीं था। 7 - √7 था, यहाँ पे भी कोई कॉमन पॉसिबल नहीं था। तो पॉसिबल नहीं था तो हमने नहीं लिया, ठीक है। बट यहाँ पे पॉसिबल था, पर्पसली उन्होंने ये क्वेश्चन दिया है हमें दैट हियर 15 और 3√2 में 3 इज द कॉमन मल्टीपल, ये 3, ओके। तो ये देखो 15 - 3√2 में 3, ये 15 क्या होता है? 15 इज नथिंग बट 3 × 5, ओके। सो ये वाला 3 और ये वाला 3 को हमने कॉमन लिया, सो आई गॉट द आंसर एज 5 - √2। एंड देन मैंने ये वाले पार्ट को, दिस इज द इरैशनल पार्ट। तो रैशनल कैसे बनाते हैं? ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करके। सो मैंने मल्टीप्लाई किया 5 + √2 से, सो माय आंसर इज 5 + √2। Okay, so I hope this is clear. Last sum, 3 + √2 + 2√3. 3√2 + 2√3. Now, can I simplify this? Any simplification possible here? कोई नंबर रूट के अंदर से बाहर आ सकता है? नहीं आ सकता है। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? यहाँ पे 3 है बाहर, यहाँ पे 2 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। कुछ कॉमन भी नहीं आ सकता, सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, तो हमारा स्टेप क्या होता है फिर? सिंपल, व्हाट विल वी डू? वी विल multiply it with the opposite sign. We will multiply it with the opposite sign. अगर कुछ भी simplification possible नहीं है तो सीधा opposite sign से multiply करो. So this will become 3√2 the whole square minus 2√3 the whole square. Answer will be this, what you multiplied. Yes, Aram. सर अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं कर सीधा आंसर लिए तो मार्क्स मिलेंगे? नहीं नहीं नहीं, फिर वो गलत हो जाएगा। बिकॉज क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पे क्या बोला था कि लोवेस्ट फैक्टर बताओ, लोवेस्ट, ठीक है। तो समझो आपने ये वाला क्वेश्चन था आपका 3√2, ठीक है, आपने अगर डायरेक्ट किया 15 + 3√2 आपने लिखा, ठीक है, आपका आंसर रैशनल बन जाएगा, ओके, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका आंसर रैशनल नहीं आएगा, रैशनल बन जाएगा। लेकिन आपने लिखा 15 + 3√2 और मैंने लिखा 5 + √2, तो मेरा नंबर लोवेस्ट है कंपेयर टू योर नंबर, मेरा Yes. नंबर छोटा है, तो मेरा आंसर करेक्ट है, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में बोला है लोवेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। ओके सर, थैंक यू। आई एम पर्पसली सॉल्विंग दिस सम क्योंकि ये वाला स्क्वायर कैसे लेंगे? ये 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड √2 का स्क्वायर होता है 2, ओके। 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड √3 का स्क्वायर इज 3, so 18 - 12, your answer will be 6. रैशनल हो गया, किसने मल्टीप्लाई किया? इससे, so this is your answer. Okay, so we have completed the basics of the C exercise. From the next lecture onwards, we will be doing the important sums, the very important sums. But these basics were very important कि कब कैसे rationalize करना है. Once you know that,
You can do it easily. Okay, that's it for today.